Hello students, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. As you know students that in the previous class we completed our chapter number 5, that is nouns, gender, from your grammar book, right? And today we are going to move ahead with one more chapter, and this would be the last chapter of your half yearly syllabus. Okay, that is chapter number 22, interjections. This is one of the part of the speech which we study in the grammar, right? And you can consider it that it is the last parts of speech. ठीक है, interjections जो है वो हमारे जो 8 parts of speech होते हैं उसमें से एक है, ठीक है, and we are going to study that today. So students, can you just see over here, there are so many different faces, right? If you see the first one, that is happy, है ना? ये लड़का क्या है? खुश है. You can see the smile on his face, right? He is happy. If you see the second one, this boy looks angry, है ना? कैसा लग रहा है वो? Angry लग रहा है. फिर ये तीसरा वाला देखेंगे तो ऐसा फील हो रहा है he is worried, right? He is worried. उसको किसी चीज़ का टेंशन है. It feels like that. He is a little bit worried or something, right? Then the next thing over here which you can see is excited. Yes, right? That kind of feeling. Yes, I am going to get a new dress today. Yes, I am going to get a new toy today. I am so excited, right? वैसा वाला feeling है इसके face पर, है ना? फिर ये जो नेक्स्ट वाला है he is tired. He is tired, है ना? थक गया है वो. He is tired. You can make it out from his face. Just look at him, right? He is so tired. और लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाली फीलिंग क्या है यहाँ पे? That is sad. This girl is sad, है ना? This girl is sad, right? So you can see that there are the images of some boys and girls, right, with different expressions on their face, है ना? ये expressions कैसे हैं जो उनके face पर पता चल जाता है. When you are smiling, when you are angry, when you are worried, when you are excited, when you are tired, when you are sad, है ना? लेकिन यही चीज़ जब हमें लिख के बतानी हो किसी को, है ना, expressions जो आपके face पर आते हैं वो सबको पता चलता है. लेकिन यही चीज़ जब आपको किसी को लिख के बतानी है, when you want to write it down, when you want to have those feelings in a written form, you use some words to express your feelings. ठीक है, जब आपको यही सारी feelings जो है, happy है, angry, worried, excited, tired, sad, there are many other feelings, right? So वो सारी feelings, emotions जो होते हैं उसको express करने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, टू हैव इट इन अ रिटन फॉर्म, एंड दोज वर्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी इंटरजेक्शंस. ओके, सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. व्हाट इज इंटरजेक्शन, है ना? चलो, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओवर हियर स्टूडेंट्स. इट्स पेज नंबर 96 in your grammar book. Okay, so all of you please open your textbook and just pay attention. Okay, let's get started. Here you have some pictures and underline the correct option. देखो ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं, है ना? तो हमें उनकी फीलिंग्स को देखकर वर्ड सेलेक्ट करना है. देखो पहले वाला जो है, द बॉय इज सो हैप्पी, है ना? व्हाट डू यू थिंक? इज सो हैप्पी. व्हाई? ही इज सो एक्साइटेड बिकॉज ही इज सो हैप्पी बिकॉज ही वन अ ट्रॉफी, राइट? सो hooray, I won the contest. What do you think, which would be the right answer over here? Yes, you are right students, it's hooray, है ना? Hooray, I won the contest, right? Then the second thing, what you can see over here, alas or hi, I am sick. Alas sadness describe करता है. alas क्या दिखाता है? sadness. hi is just a formal thing, है ना? तो आई एम सिक के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? वो बीमार है तो ऑब्वियसली खुश तो होगी नहीं, है ना? शी इज़ सैड, सो वी आर गोइंग टू राइट अलास ओवर हियर, है ना? ठीक है. फिर थर्ड वाला है हाई और अलास आई एम जेनी,
What do you think? Is she happy? Is she just waving? Yes, she is waving over here. So what we are going to use? We are going to use this one. Hi, I am Jenny. And last one. Shh or hooray. There is an exam going on. What would you say? क्या कहेंगे जब एग्ज़ाम चलती है तब टीचर्स क्या कहते हैं आपको? मेंटेन साइलेंस, कीप क्वाइट, राइट? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला. देयर इज़ एन एग्ज़ाम गोइंग ऑन, राइट? तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में स्टूडेंट्स, दीज वर्ड्स विच आर गिवन इन द ब्रैकेट, राइट? व्हाट आर दे डूइंग? दे आर शोइंग द एक्सप्रेशंस, दे आर शोइंग द फीलिंग्स, है ना? वो क्या दिखा रहा है? फीलिंग्स और इमोशंस दिखा रहे हैं वो वर्ड्स, है ना? तो वो हमारे इंटरजेक्शंस हैं, ठीक है? वी आर गोइंग टू सी दिस ओवर हियर, विल सी द डेफिनेशन ऑल्सो. सो लेट्स सी ओवर हियर. हियर दे हैव गिवन सम मोर एग्जाम्पल्स. जैसे कि यहाँ पे देखो, हुर्रे, माई फादर हैज़ बॉट मी अ न्यू वॉच. हुर्रे, ही इज़ सो हैप्पी, है ना? आई एम सो हैप्पी, माई फादर बॉट मी अ न्यू वॉच. हुर्रे. वॉट, आर यू सीरियस? देयर इज समथिंग रॉन्ग, है ना? आप सरप्राइज्ड हो. Are you serious? ऐसा कैसे हो सकता है? वैसा वाला what? Oh no, she is late again. Oh no, she is late again. That is disappointment over here. Disappointment, है ना? जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तब ये हम बोल सकते हैं. Then last one, bravo, they won the match again. Bravo is again showing excitement. क्या दिखा रहे हैं? Excitement दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है, हुर्रे, what, oh no and bravo, what are they expressing? They are expressing emotions. They are expressing sudden emotions. The expressions which you can see on your face, that could be written, right? और वो जो words use किए जाते हैं उसको हम interjections कहते हैं, ठीक है? Here they have the definition. उससे पहले देखो हम देख लेते हैं यहाँ पे हुर्रे क्या एक्सप्रेस कर रहा है. Hooray expresses joy. What expresses surprise. Oh no expresses despair. Despair means disappointment kind of thing, right? जिस मैंने आपको बोला. And bravo expresses approval, है ना? So these are the different words which are used to express different feelings and emotions. Okay? So words that express some sudden strong emotions are called interjections. Okay? And interjections are followed by an exclamation mark. Words जो sudden और strong emotions express करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Interjections, ठीक है? And interjections are followed by an exclamation mark. Exclamation mark मतलब punctuation, ये वाला, ठीक है? What do you call it? You call, you call this thing as punctuation. और ये punctuation को क्या कहा जाता है? We call it exclamation mark. Okay? So remember students, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? exclamation mark कहते हैं. और ये हम कहाँ लगाते हैं? interjection के बाद. जैसे कि यहाँ पे देखो, हुर्रे लिखा है, उसके बाद exclamation, SHH, उसके बाद exclamation, what, oh no, bravo. If you see all these words over here, if you see these words students, सबके अंदर पीछे exclamation mark लगा है ना? So you need to remember कि interjections के बाद क्या लगाया जाता है? We put exclamation marks. Okay? Now there are some more examples given over here for using different emotions. ठीक है? जैसे कि alas, it shows despair. Despair मतलब कैसे मैंने बोला आपको अभी? despair मतलब sadness, disappointment, वैसा वाला, है ना? जैसे हमने यहाँ पे oh no यूज़ किया था despair के लिए, देखो यहाँ पे, है ना? वैसे ही despair के लिए alas भी यूज़ करते हैं. फिर what की जगह पर हम oh भी यूज़ कर सकते हैं for surprise. hi की जगह हम hello भी लिख सकते हैं, है ना? just like this. Then yippee is used for showing your excitement, है ना? excitement दिखाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. Then wow expresses the joy and happiness, है ना? when you like something, right? आप कैसे appreciate करते हो सामने वालों को?
वाओ, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, राइट। एंड साइलेंस की जगह पर हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है हश, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरजेक्शंस विच आर गिवन ओवर हियर, है ना। सो समटाइम्स इंटरजेक्शंस में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। कुछ इंटरजेक्शंस अभी जैसे ये हमने देखे वो सिर्फ एक एक वर्ड थे, है ना। दीज ऑल आर वन वर्ड, रे, वॉट, ब्रावो, फिर ये सारे। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वर्ड होता है, मतलब इट्स नॉट ओनली वन थिंग, देयर आर टू ऑफ देम। जैसे कि ओ नो, वेल डन, माय गॉड, गुड लॉर्ड, आह मी, राइट। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट इंटरजेक्शंस, है ना, जो एक नहीं है, दो वर्ड्स है, और कभी कभी दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादातर एक होता है या फिर दो होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं वैसे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको इतना पता चला कि इंटरजेक्शंस क्या होता है ना। इंटरजेक्शंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो योर इमोशंस एंड फीलिंग्स, ओके। What are interjections, students? Interjections are those words which are used to show your sudden feelings and emotions, whether you are sad, happy, angry, excited, tired, है ना, जो भी है, whatever you have your feeling, you can express it in the form of words, and those words are considered to be interjections. And interjections के पीछे हम कौन सा वाला पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं? We put exclamation mark over here, okay? So you need to remember that, students, okay? I think ये आपको क्लियर हो गया है. So we can move ahead with the exercise. Here we have exercise A, जहाँ पर हमें सही वाला interjection choose करना है, right? So let's see that. Choose the correct interjections for these situations. There are some situations given over here, students, ठीक है, और उस हिसाब से हमें interjection लगाना है जो बॉक्स में दिए हैं उसमें से, ठीक है. The first one is when you lose your pencil box. When you lose your pencil box, जब आप अपना पेंसिल बॉक्स खो देते हो तो आप क्या बोलोगे? What would you say? कौन सा वाला interjection यूज़ करेंगे हम यहाँ से? We would be using alas, है ना. क्या लिखेंगे हम? alas. Despair. What does it show? It shows your sadness and despair. When you trip and fall. Trip and fall का मतलब क्या होता है? जब आप suddenly किसी चीज़ के ऊपर पैर रख के गिर जाते हो, है ना. You just put your feet on something by accident and then you fall down. Then what can you write over here, students? We can write ouch, right? अब जब गिरोगे तो क्या होगा? आपको लगेगा, है ना. तो हम क्या लिख सकते हैं? ouch, ठीक है. Then the third one, when your mother bakes a lovely cake. When your mother bakes a lovely cake. What do you think? What would you say over here? We can write over here, wow, है ना. मम्मी ने इतना अच्छा केक बनाया है, हम क्या बोलेंगे उसके लिए? wow, है ना. Then fourth one, when you come first in the class. That means when you score first position in the class, you would be excited, right? और जब आप excited होते हो तब आप क्या बोल सकते हो? You can write hooray, है ना. hurrah, sorry, it's HURRAH, hooray, है ना. I came first in the class, hooray, वैसा वाला. Fifth one, when you tell your friends to be quiet. जब आप आपके फ्रेंड्स को चुप रहने के लिए बोलते हो, what can you use over here? Yes, we would be using it's HUSH, ठीक है. When you tell your friends to be quiet, उसके लिए हम यूज़ करेंगे HUSH. Then the next thing, when you meet your aunt after long time. जब आप आपके आंट को मिल रहे हो, है ना. आंट को आप मिल रहे हो तब आप क्या यूज़ करोगे? क्या कहोगे उनको? हेलो, है ना. क्या कहेंगे हम लोग? हेलो, है ना.
सो ये यहाँ पर हेलो आएगा फॉर आंसर नंबर 6. देन 7th one, when you appreciate your brother on doing well in class. When you appreciate your brother on doing well in class. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? What will you say when you are appreciating? Well, when you are appreciating, right? Somebody has done good, somebody has done a good job. Then what can you say over here? We can say well done, है ना? क्या कहेंगे हम? Well done. I'll just write again in the middle because I think the space is not enough. Well done. ठीक है? Now next one and last one. When you have just received some bad news. जब आपको कुछ बैड न्यूज़ मिल रही है ना, तब आप क्या यूज़ कर सकते हो? वी कैन से गुड लॉर्ड, हैव पीस ऑन देम. मान लो आपको किसी की डेथ की न्यूज़ मिलती है या फिर कोई बुरी न्यूज़ मिलती है, तब आप किसको याद करते हो सबसे पहले? यू रिमेंबर योर गॉड, है ना? You remember your Lord, and that's why we can write good Lord in the last one. Okay? Now see exercise B जो है, ठीक है, वो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ. You have to do it by yourself and also let us write. दोनों ही चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है. ठीक है, एक्सरसाइज B मैच करना है, होमवर्क है, टेक्स्ट बुक में ही करना है. And also let us write. They have given some options in the bracket. You need to select the appropriate one. So this is also your homework. ठीक है, ये दोनों आपको होमवर्क दे रही हूँ. We will check it in the next class. And right now I am going to explain you the SEA activity. Okay, I am going to explain you the SEA activity. So let us see that. Okay, so students, here is the subject enrichment activity, which I have already shared with you in the WhatsApp group and also in the Google Classroom, right? So what is this activity? The activity you have to carry out is, first one over here is, you need to write about one of the animals that is on verge of extinction. Extinction मतलब ख़त्म होने के कगार पर है ना? The animals which are on the verge of extinction, that means they are going to disappear. अभी धीरे धीरे इतने कम हो गए हैं. ठीक है, वो जो एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स है जो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, मतलब उनकी जो काउंटिंग है, राइट, दे आर सो लेस दैट इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दे माइट डिसअपियर. जैसे कि डायनासोर्स थे, है ना? डायनासोर्स कैसे थे कि ऑलमोस्ट पहले थे और उसका फिर एक्सटिंक्शन हो गया. एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म हो गए, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना? वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे. वैसे ही कुछ एनिमल्स है जो ख़त्म होने के एज पर है. दे आर दैट मीन्स इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यू वोंट बी एबल टू सी दोज एनिमल्स, है ना? इतने कम है वो कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और फिर कुछ सालों बाद आपको वो एनिमल्स देखने को भी नहीं मिलेंगे. ठीक है, वैसे वाले कुछ एनिमल्स हैं, उनके बारे में आपको लिखना है और साथ में उसके पिक्चर्स स्टिक करने हैं. उसके लिए आप आपकी टेक्स्ट बुक का कम्युनिकेट इन इंग्लिश का जो पेज नंबर 64 है वो देखना. उसमें जो दूसरी एक्सरसाइज है, राइट, उसमें दिया हुआ है. और जस्ट अ मोमेंट. So in that book, in your Communicate in English textbook, you can see कि वहाँ पे मैंने वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं, जैसे कि पैंडा है, ठीक है, फिर ब्लू व्हेल है, ठीक है, एंड देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ गिवन ओवर देयर. ये सारे जो एनिमल्स हैं, these animals are on the verge of extinction. That means ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे. ये आप आपके कम्युनिकेट की जो टेक्स्ट बुक है उसके 64 पेज पर भी आप रीड कर सकते हो, वहाँ पर दिया हुआ है. और आप, ऐसा नहीं है कि आपको उन्हीं तीनों में से कोई एक लेना है. यू कैन फाइंड आउट
विच एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मैंने एक्सटिंक्शन का मतलब आपको समझाया है। एक्सटिंक्शन मतलब कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जैसे डायनासोर्स गायब हो गए, वैसे ही कुछ और एनिमल्स हैं जो ख़त्म होने के वर्ज पर है। ठीक है, तो उनके बारे में आपको फाइंड आउट करके लिखना है A4 साइज़ के कलरिंग पेपर के ऊपर, और उनके पिक्चर्स स्टिक करने हैं। ठीक है, यू कैन स्टिक 3 to 4 पिक्चर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल एंड यू जस्ट हैव टू राइट अबाउट एनी वन। किसी एक के बारे में ही लिखना है, 2-3 के बारे में नहीं लिखना है, सिर्फ एक के बारे में लिखना है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है। और दूसरी एक्टिविटी क्या है हमारी, यू हैव टू राइट द लिस्ट ऑफ 10 होमोफोन्स। नाउ होमोफोन्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है स्टूडेंट्स, है ना। हमने आगे पढ़ा है कि होमोफोन्स किसको कहते हैं, है ना। होमोफोन्स मीन्स द वर्ड्स विच हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट दियर स्पेलिंग एंड मीनिंग आर डिफरेंट। सो वैसे ही आपको 10 होमोफोन्स फाइंड आउट करने हैं और उसका लिस्ट बनाना है। ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन दोज होमोफोन्स अलॉन्ग विद दियर मीनिंग्स, है ना। जैसे मान लो आपको कोई वर्ड दिया जाता है वीक, और दूसरा है ये वीक, है ना। तो ये वीक मतलब इट्स 7 डेज, है ना। ये वाला वीक का मतलब क्या होता है, 7 डेज पूरा। और ये वीक का मतलब क्या होता है, फीबल, यू आर नॉट वेल, है ना। तो वैसे ही आपको ये एक हुआ आपका, दिस इज़ 1, वैसे ही आपको 10 लिखने हैं। ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन 10 होमोफोन्स विद देयर मीनिंग्स। और पहली एक्टिविटी क्या है, एक्सटिंक्शन पर जो एनिमल्स है, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, दैट मीन्स ख़त्म होने पर जो है, ख़त्म होने की एज पर है दोज एनिमल्स, उसमें से किसी एक के बारे में लिखना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, पांडा के बारे में लिख सकते हो या फिर ब्लू व्हेल के बारे में लिख सकते हो। उसके अलावा भी कुछ और एनिमल्स है जो ख़त्म होने की कगार पर है। जैसे डायनासोर्स ख़त्म हो गए, वैसे ही ये एनिमल्स भी गायब हो जाएंगे अर्थ पर से, है ना। तो वैसे कोई एक एनिमल के बारे में आपको फाइंड आउट करके लिखना है और उसके 3-4 पिक्चर्स लगाने हैं। ठीक है, और ये जो आप एक्टिविटी करोगे वो किसके अंदर करोगे, यू हैव टू कैरी आउट इन A4 साइज़ कलरिंग पेपर। A4 साइज़ का जो कलरिंग पेपर क्राफ्ट में यूज़ करते हो ना, बड़ा वाला वो कलरिंग, वैसा वाला आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये दोनों एक्टिविटी करने के लिए। और आपको फ़ाइल नहीं बनानी है, आई डोंट वॉन्ट एनी फाइल। आप क्या करोगे, वो पेजेस को स्टेपल करना, और जो सबसे पहला पेज होता है उसके ऊपर आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, डिवीज़न एंड इंग्लिश सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। दैट इज़ द ओनली थिंग यू आर गोइंग टू राइट ऑन द वेरी फर्स्ट पेज। ठीक है, एंड यू कैन कैरी आउट द अनदर 2 एक्टिविटीज़ जो है आपको दी गई है। दीज 2 एक्टिविटीज़ कैन बी डन, राइट, दीज 2 एक्टिविटीज़ कैन बी डन इन द रिमेनिंग पेजेस। ठीक है, आप 2-3 जितने भी आपके पेजेस यूज़ होते हैं आप यूज़ कर सकते हो। और पहला जो पेज होगा उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट योर नेम, योर क्लास, योर डिवीज़न, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी इंग्लिश। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द सबमिशन इज़ ऑन 28 August, दैट इज़ सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे, कमिंग सैटरडे, है ना। अब जो सैटरडे आएगा उस दिन आपको स्कूल में सबमिट करना है आपका प्रोजेक्ट। आप आके आपकी क्लास टीचर को सबमिट कर सकते हो बिटवीन 10 to 12। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पूरा SEA क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट है आपको, देन प्लीज़ लेट मी नो, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई पर्सनल नंबर, आई वुड ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, और इंटरजेक्शन की एक्सरसाइज भी कर लेना, उसमें जो भी एक्सरसाइज मैंने दी है वो आप कंप्लीट करना। वी आर गोइंग टू चेक दोज एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस।